Okay, so this is the last part of Maths Chapter 3 Matrices, and the topic is elementary operations transformations or elementary transformations or elementary operations, whatever you want to call it. Okay, now what is basically elementary transformations or operations? There are 6 transformations of a matrix, 3 for rows and 3 for columns, right? The first transformation is interchange of any two rows or columns. The interchange of ith and jth rows is denoted by Ri, and there is a double-headed arrow which means interchange with Rj. So Ri, that is ith row, gets interchanged with jth row, or ith column gets interchanged with jth column. So that is the first type of transformation, interchange of any two rows. For example, suppose we have this matrix, and if we apply R1 interchange with R2, so row 1 will become row 2 and row 2 will become row 1. As you can see here, I will highlight this. This is the first row. Now it has become this, sorry, this is the second row. Now it has become the first row after transformation, and the first row has become the second row. So that is how transformation occurs, right? You interchange the rows. That is basically an example of the first kind of transformation, that is interchanging of any two rows or columns with each other. Second is multiplication of the elements of any row or column by a non-zero number. So multiplication of each element of ith row by non-zero number k is denoted by ith row becomes k times ith row. So the whole row is multiplied by a non-zero number k, or whole column is multiplied by a non-zero number k. So here we have a matrix B, which is 1, 2, 3, minus 1, root 3, 1. If I apply the transformation C3, which is equal to 1 by 5 C3, so all the elements of third column must be multiplied with 1 by 5. So here 3 and 1, they both will become 3 by 5 and 1 by 5. So that is the multiplication of the elements of any row or any column by a non-zero number. That is the second type of transformation. Third type of transformation, addition to the elements of any row or column, the corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero number. So basically what you do is you take a row, ith row, let's say, and you add the ith row elements, you add the elements of ith row with k times the elements of jth row. This k can be any non-zero number, it can be 1 also. So basically what you do is you get the ith row transformed. Now the ith row becomes ith row of your matrix becomes ith row added with the k times the jth row of that same matrix. For example, and the same can be done with columns also. For example, we have a matrix C 2, 3, 3 minus 2. And if I apply this transformation R2, which is R2 minus 2 R1. So what you do is basically you take each element of R2. R2 is row 2, row 2 is over here. Suppose if I have element 3 over here, what I will do with element 3, I will take that element and I will subtract 2 times the first element of row 1 from it. What was the first element of row 1? 2. So 3 minus 4, that is minus 1. So now your R2, that is on which you are doing this transformation, becomes R2 minus 2 times R1. So your R2, that is the element of your row 2, was 3, and now it has become minus 1. If it would have been minus 2, it would become minus 8 by applying this transformation. Right? So if you want to see that, I'll show you. Minus 2 minus 2 times R1, that is row 1, which is 3.
That is minus 2 minus 6, which is minus 8. Correct? So basically, these are your transformation. Third transformation, let's go to, we have total 6 transformations, right? Yeah, 3 for rows and 3 for columns. So the first is interchanging of rows and columns. The second is multiplication of any row or column with a non-zero number. And third is addition of the elements of any row or column with the corresponding any other row or column when such that when the respective elements of the second row or column is multiplied with a non-zero number, and then it is added to the respective elements of the given row or column. So that is symbolically given by Ri gives Ri plus Krj. That okay, so that we have studied now. So these are the elementary rows and elementary transformation on rows and columns. Now some more definitions over here. Equivalent matrix. Two matrices are said to be equivalent if one of the matrix can be obtained from the other by sequence of elementary transformations, elementary operations. So if matrix A and B are equivalent, we write them as A equivalent to B. So this sign is very much, it is exactly similar to the similar sign. Triangle ABC, remember, right? Triangle ABC is similar to triangle PQR. So this sign, when used in matrices, it is known as the sign of equivalence. Equivalence. So what are equivalent matrices? Two matrices are said to be equivalent when we have performed one or more elementary transformations on one of them and obtained the other. So if I do an elementary transformation, row R1 interchange with row R2, I will get this matrix, right? So these two matrices, the original matrix and the transformed matrix, both are known as equivalent matrices. Okay, next is invertible matrix and inverse of a matrix. Very important, please understand. Any n-rowed square matrix A, n-rowed square matrix A is said to be invertible if there exists an n-rowed square matrix B such that AB is equal to BA is equal to IN. Right? So we can say that A is the inverse of B and B is the inverse of A only if and only if AB is equal to BA is equal to IN. Okay, now understand what is N. N is equal to number of rows of A, which is equal to number of rows of B. Okay, A and B both will have n rows. So AB and BA will be same, which will be equal to IN. Okay, here B is called the inverse or reciprocal of A. B is called inverse or reciprocal of A. B is called inverse or reciprocal of A. Inverse of A is generally denoted by A inverse. This is the sign for it, A inverse. Suppose we have a matrix A and matrix B. These are two matrices which are known to us. Okay, so AB is equal to identity matrix of the same order, right? And if we find BA, that is also giving you the same thing, identity matrix of the same order. So B is inverse of A and A is inverse of B. We can write them as this, right? So this property is specifically possessed by square matrices only. Square matrices only. Only square matrices can be inverse of one another. Two different square matrices can be inverse of one another. Okay, and the criteria for inverse is their product in any order gives you the identity matrix of the same order. A rectangular matrices does not possess inverse matrix. Rectangular matrix cannot be inverse of any other matrix, or any matrix, any rectangular matrix cannot be converted into inverse. We cannot find inverse of any rectangular matrix.
For products A, B and BA to be defined and to be equal, it is necessary that matrices A and B are to be square matrix and of the same order. Then only A, B and BA can be defined. So if it is a rectangular matrix, suppose A and B are rectangular matrix, you can find AB, but you cannot find BA. You cannot find BA. BA is not possible because the compatibility rule changes. So A and B both must be square matrices, and after them being square matrices, AB should be possible, BA should be possible, of course they will be possible, and AB and BA should be equal to each other, and they both should be equal to IN. Only then they are inverse of each other. A inverse is equal to B and B inverse is equal to A. Right? So these are the rules of inverse or invertible matrices. Okay, some important theorems are here. If A inverse is if A inverse is inverse of A, then A is inverse of A inverse. Right? Very easy, very simple it is. अगर A का inverse A inverse है, तो A inverse किसका inverse होगा? A का. A is the inverse of A inverse. ठीक है, इसको प्रूव किया है वो लोग ने. नो नीड ऑफ द प्रूफ राइट नाउ. हम लोग देखेंगे अगर क्वेश्चन में कोई ऐसा आता है तो. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन. हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स ढूंढ सकते हैं. We can find the inverse of the matrix if it exists by using either row operations, transformations, or column operations. Let A be a square matrix of order n. Then A is equal to in into A. तो हम लोग कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, in मल्टीप्लाइड बाय A और A मल्टीप्लाइड बाय in. हमें A ही मिलने वाला है, राइट? Let a sequence of elementary operations reduce A on the left side to in, and the same elementary operations reduces in to another matrix B. मतलब अगर देखो, सुनो मेरी बात, बहुत इजी है. यहाँ पे थियरी में पूरा एक्सप्लेन किया है, इसको हम लोग एग्जांपल से भी देखेंगे. अगर तुम्हारे पास A इज इक्वल टू in मल्टीप्लाइड बाय A है, ठीक है. सो बेसिकली मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है, मेरा मैट्रिक्स जो है ओरिजिनल वो, और वही मैट्रिक्स मैंने यहाँ भी लिखा है. अब मैं कुछ तो ऐसे एलिमेंट्री रोज और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अगर करूं, and suppose if I can convert this matrix A into an identity matrix, and this identity matrix into another matrix, let's say B, and this matrix A remains as it is, then what happens, then A and B, they both will give me identity matrix. That means B is nothing but inverse of A. B is nothing but inverse of A. तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा मुझे, that will be inverse of the original matrix. ऐसे करके हम लोग ढूंढने वाले हैं, ठीक है. By doing one or more elementary operation, if you obtain all zeros in one or more rows and columns on the left side matrix of in, then A inverse does not exist. अच्छा, ये बहुत ही एक important point बताया, इसको जरा नोट कर लेना. तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और लेफ्ट साइड में एक या एक से ज्यादा रोज और कॉलम में हमें अगर जीरो मिलता है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. तो लेफ्ट साइड मतलब ये वाली साइड, यहां पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर ऑर्डर 2 है तो इसका 1 0 0 1 जैसा दिखेगा. अगर ऑर्डर 3 है तो ये दिखेगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1. इसमें देखो कोई भी रो या कॉलम पूरी जीरो नहीं है. अगर कोई भी रो और कॉलम पूरी जीरो बन जाती है तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का. ठीक है, इसको याद रखना, हम लोग अप्लाई करेंगे इसको. चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं. बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. चलो हम लोग ये करके देखते हैं. A1327, लेट्स चेक.
ठीक है, तो हमारा मैट्रिक्स है A 1 3 2 7। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, ताकि हमें इसका इन्वर्स मिले। तो सबसे पहले हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 2 7। किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वापस वही स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है, इसलिए तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलता है। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 1 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 2 7। ठीक है, ए मैट्रिक्स भी यहाँ पे लिख देंगे 1 3 2 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 0 0 1, इसको इनटू ए ही रखेंगे यहाँ पे, राइट। ये ए मैट्रिक्स ए है वो एज इट इज ए रहेगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये तुम्हारा मैट्रिक्स ए की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। अब मुझे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। तो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि मुझे ये लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और यहाँ पे कोई नया मैट्रिक्स बनाना है और इसको ए ही छोड़ना है। ठीक है, सो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। तो मुझे ये सोचना है कि ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाऊं। देखो यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, ठीक है, यहाँ पे मुझे 3 और 2 की जगह पे 0 चाहिए और 7 की जगह पे 1 चाहिए। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई कॉलम में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ये सोचना है तुमको। तो मैंने कुछ मेरे दिमाग में आया है। देखो ये रो 1 है, ठीक है, और ये रो 2 है। सो मैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूँ वो रो 2 में करना है। सो मैं यहाँ पे पहले ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूँ। रो 2 पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है? रो 2 में मैं ट्रांसफॉर्मेशन ये करूँगा कि रो 2 के सारे एलिमेंट्स में से मैं माइनस करूँगा 2 टाइम्स द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ रो 1। सो R2 पे ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा R2 माइनस 2R में। तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दोनों साइड करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो जरा, R2 पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, R1 तो एज इट इज रहेगा 1 3। ठीक है, तो R2 क्या बन जाएगा? R2 में सपोज ये यहाँ पे 2 है, 2 में से क्या माइनस करूंगा? 2 में से ये 1 माइनस करूंगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1 बाई 2। सो 1 को अगर 2 में मल्टीप्लाई करूँ, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 2, और 2 में से 2 माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 0। यू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने क्या किया। मैंने 2 ले लिया, जो ये वाला एलिमेंट है, उसमें से मैंने माइनस किया 2 टाइम्स 1। रो 2 के एलिमेंट में से 2 टाइम्स रिस्पेक्टिव एलिमेंट ऑफ रो 1 माइनस किया, विच इज 2 माइनस 2 विच इज 0। ये ओरली करके मैंने यहाँ पे लिखा है। वैसे ही 7 में से माइनस क्या करूंगा मैं? 2 टाइम्स 3। 7 में से 2 टाइम्स 3 मतलब 6 माइनस होगा, क्या बचेगा? 1। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बनना शुरू हो चुका है ये एलिमेंट, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। तुम पूछोगे सर आपको कैसे पता चला ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है? सोचना है यार, तुम्हें ट्रायल एंड एरर से सोचते रहना है, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन से। हो सकता है सबका ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग हो बट आंसर सेम आए, ऐसा होता है, बहुत बार होता है। तो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है ये वाला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला, लेकिन इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो बी वेरी मच अवेयर अबाउट दिस। अच्छा, इसमें क्या करना है? फर्स्ट रो तो मैं एज इट इज लिखूंगा 1 0, फिर 0 में से मैं माइनस करूंगा 2 टाइम्स 1। 0 माइनस 2 टाइम्स 1, सो 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -2। फिर 1 में से मैं माइनस करूंगा 2 टाइम्स 0, वो रह जाएगा 1। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय a, राइट। अब मुझे ये वाला जो 3 दिख रहा है तुम्हें,
इसको मुझे ज़ीरो बनाना, कैसे बनाऊँ इसको ज़ीरो, ये सोचना है अभी। तो मैं अब ऑपरेशन करूँ, क्योंकि मुझे ये फर्स्ट रो के एलिमेंट को, रो वन के एलिमेंट को, रो वन का जो सेकेंड एलिमेंट है उसको चेंज करना है। तो मैं जो ऑपरेशन करूँगा अभी रो वन पे ही करूँगा। ठीक है, तो रो वन पे मेरा ऑपरेशन होने वाला है। क्या ऑपरेशन होगा? सो बेसिकली मैं रो वन के एलिमेंट को लिखूंगा और उसमें से मैं 3 टाइम्स रो टू के एलिमेंट को माइनस कर दूंगा। तो तुम बोलोगे सर ये कैसे आइडिया आया आपको? तो बहुत सिंपल है कि यहाँ पे मेरे पास रो टू में वन है एक एलिमेंट, उसको मैं 3 टाइम्स करूंगा तो 3 बन जाएगा और 3 - 3 0 हो जाएगा जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर ये फिर ये भी तो चेंज हो जाएगा। नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखो मैं बताता हूँ। सो बेसिकली रो वन पे ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो रो वन को देखो। अब ये रो वन में से, रो वन के एलिमेंट में से 3 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ रो टू माइनस करूंगा। तो 1 - 3 टाइम्स 0, दैट इज 1 - 0, तो वो 1 ही रहेगा। 3 - 1 टाइम, सॉरी 3 - 3 टाइम्स 1, दैट इज 3 - 3, वो क्या बन जाएगा? 0। और यहाँ पे आ जाएगा 0 1। ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब सेम रो ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे सेकेंड मैट्रिक्स में भी करना पड़ेगा। सो रो वन में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 3 टाइम्स रो टू। ठीक है, सो मेरे पास पहले 1 है, 1 में से मैं माइनस करूंगा 3 टाइम्स -2। 3 टाइम्स -2 होता है -6। तो 1 में से जब -6 माइनस करूंगा, 1 - -6 ऐसा मिलेगा मुझे, जो क्या बन जाएगा? 7। तो यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, अभी 0 में से 3 टाइम्स 1 माइनस करूंगा। 0 में से जब 3 टाइम्स 1, मतलब 0 में से जब 3 माइनस करूंगा, 3 टाइम्स 1 इज 3, राइट? तो मुझे मिलेगा -3 और नीचे बचेगा -2 और 1 टाइम्स 8। करेक्ट। तो अब मुझे क्या मिल रहा है पता है? ये एक मैट्रिक्स है, सपोज इसको मैं, ये मैट्रिक्स को मैं मान लेता हूँ मैट्रिक्स बी, और ये क्या मिल रहा है मुझे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? मैट्रिक्स ए। मतलब मैट्रिक्स ए के साथ ये जब बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। देयरफॉर ए इनवर्स मुझे मिल चुका है। क्या है वो? बी। ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 7 - 3, 7 - 3 नहीं है, 7n - 3, सॉरी, 7 - 3 - 2 1। ये है ए इनवर्स, ये है ए इनवर्स। मुझे ए इनवर्स ही ढूंढना है। सो ऐसे करके रो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अप्लाई किए। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो, कोई और ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किए वही करेक्ट है, तुम्हारे अलग तरीके से भी आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे आंसर का जो मेथड है वो चेंज हो सकता है, जबकि यहाँ पे वो आंसर में वही मेथड यूज किया है जो मैंने किया है। 7 - 3 - 2 1। एक बार चेक कर लेते हैं, करेक्ट है। तो यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी किया है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम हमेशा रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी तुम्हें इनवर्स सेम मिलेगा। ठीक है, तुम्हें दोनों करना भी ज़रूरी नहीं है, कोई एक भी कर सकते हो। ठीक है, चलो। बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड पी इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट्स व्हेन पी इज दिस। तो इफ इट एग्जिस्ट्स बोला है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या ये हो सकता है? हाँ, एक कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जब तुम्हारा लेफ्ट साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें कोई भी एक पूरी कॉलम या कोई भी एक पूरी रो जीरो हो जाती है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये तुम्हें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही चेक करना पड़ेगा। शैल वी ट्राई दिस? ठीक है, 10 - 2 - 5 1। चलो ट्राई करते हैं। एक मैट्रिक्स है P, 10 - 2 - 5 1। यही था ना? यस। तो मैं उसका इन्वर्स ढूंढना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? यहाँ पे मैं लिखूंगा मैट्रिक्स 10 - 2 - 5 1। ये तुम्हारा मैट्रिक्स P है। P इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर
दैट इज 1 0 0 1 और यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटू पी, राइट। अब मुझे ट्रांसफॉर्मेशंस करना है। सो बेसिकली मुझे फर्स्ट रो में 1 0 चाहिए, ठीक है। अगर मुझे 1 चाहिए तो मैं कैसे लाऊंगा यहाँ पे 1। चलो सोचते हैं। तो ट्रायल एंड एरर करना है बेसिकली। चलो शुरू करते हैं, ट्राई करते हैं। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे मैं पहले एक काम कर रहा हूँ, रो 1 में मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। रो 1 में, ये रो 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रो 2 ले रहा हूँ, सॉरी रो 1 ले रहा हूँ और उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 2 टाइम्स रो 2। रो 1 में मैं 2 टाइम्स रो 2 ऐड करके रो 1 को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। देखो कैसे। अच्छा, रो 1 का पहला एलिमेंट है 10, 10 में ऐड करूंगा 2 टाइम्स -5, 2 टाइम्स -5 -10 होता है, 10 -10 0 हो जाएगा। तुम बोलोगे सर ये तो 0 हो गया, 1 चाहिए। हो जाएगा, हो जाएगा, देखते हैं, लेट्स सी, चेक करते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज -2 में 2 टाइम्स 1 ऐड कर दूंगा, -2 + 2, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और नीचे एज इट इज रहेगा -5 1। अच्छा, मैंने एक रो ट्रांसफॉर्मेशन किया, आई एम सॉरी, यहां भी तो करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन यार। चलो करते हैं। तो रो 1 में क्या ऐड करना है, 2 टाइम्स रो 2, तो 1 में ऐड करना है 0, ये रहेगा 1। यहाँ पे 0 में ऐड करना है 2 टाइम्स 1, दैट इज 2, तो ये 2 हो जाएगा, ये 0, ये 1 और ये p। लेकिन यहाँ पे मैंने एक सर्टन रो ट्रांसफॉर्मेशन सिलेक्ट तो किया, वो सिलेक्ट करने के बाद मुझे समझ में आता है कि इसकी पूरी रो 1 0 हो गई। सो याद रखना वो जो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में पूरी रो या कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के बाद 0 बन जाती है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर p इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये एज पर मी ये आंसर होना चाहिए। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता, देखते हैं क्या है। p इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो कभी भी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अगर कोई भी एक रो या कॉलम 0 बन जाती है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। चलो इसका अभी इनवर्स तुम्हें ढूंढना है। प्लीज वीडियो को पॉज करो और तुम ट्राई करो। तुम्हें वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं बट अभी से शुरू करो। आई थिंक तुम्हें आइडिया तो आ ही गया है कि करना क्या है, ठीक है। कंफ्यूजन है अगर तो वापस वीडियो देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछ भी सकते हो डाउट, मैं हेल्प कर सकता हूँ, जितनी भी करूंगा मैं कर दूंगा। ओके, लेट्स चेक द आंसर। तो पहले ये लोग ने अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन करके इनवर्स निकाला है, डायरेक्ट इनवर्स ढूंढता है, ठीक है। ये इनवर्स है। अच्छा, अभी अगर तुमको कंफ्यूजन है कि कैसे किया, कैसे आया, तो देख लो, स्टेप बाय स्टेप देख लो, पॉज करके देख लो। ठीक है, सो दैट्स हाउ दे फाउंड द इनवर्स। हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, डेफिनेटली है कॉम्प्लिकेटेड, बट प्रैक्टिस करोगे तो ये भी इजी है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन। वैल्यू दी है ए की, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। बोला है यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिकली बोला है रो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है रो पे करना है। एंड हेंस सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा, ये इक्वेशन क्या है, x इंटू ए इज इक्वल टू 101। अच्छा, x इंटू ए 101। सो बेसिकली ये लोग क्या बोल रहे हैं, इसका इनवर्स ढूंढने के लिए बोल रहे हैं, वो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन ये सेकंड क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। इनवर्स तो चलो ढूंढ लिया, सेकंड क्वेश्चन क्या है, x इंटू ए। सो x मैट्रिक्स x है, इंटू ए क्या है तुम्हारा 2 1 1 1 0 1 एंड 0 2 -1। अच्छा, जब ये x और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 1 0 1।
अच्छा, अब मुझे बताओ ये इसका ऑर्डर क्या है, 3/3, और इसका ऑर्डर क्या है, 1/3। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर कैसे पता चलेगा, सपोज इसका ऑर्डर है m/n। ठीक है, तो कंपैटिबिलिटी के हिसाब से n और 3 इक्वल होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, और m जो नंबर ऑफ रोज है फर्स्ट मैट्रिक्स की, वो प्रोडक्ट का नंबर ऑफ रोज हो जाएगा, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है सेकेंड मैट्रिक्स की वो प्रोडक्ट की कॉलम्स हो जाएगी, जो है ऑलरेडी। तो इसका मतलब है m क्या है 1 और n क्या है 3। तो x जो होगा मैट्रिक्स x, उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर होगा 1/3। 1/3 मतलब बिल्कुल ऐसा दिखेगा मैट्रिक्स m। एंड व्हाट इज दिस इज नथिंग बट एन how can you call it an identity matrix? It's not an identity matrix, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इनवर्स का क्या काम है, मुझे ये समझना है कि इनवर्स का क्या काम है इसमें। तो हमने x का ऑर्डर पता चल लगा लिया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा ये सॉल्व, ये सारे क्वेश्चंस है, हो जाना चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं x को ऐसा मान लेता हूं कि लेट मैट्रिक्स x बी a b c ऐसे मान लेता हूं सपोज, और फिर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, और फिर मुझे इक्वेशंस मिलते हैं अलग अलग, और मैं जो फाइनल आंसर है लेफ्ट साइड पे उसको मैं 101 से इक्वेट करके सॉल्व करता हूं, तो क्या मुझे ए बी सी मिल जाएगा, मिल सकता है। मतलब मुझे लगता है कि सेकंड पार्ट में इनवर्स का कोई काम नहीं है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो पॉज करके आप लोग सॉल्व करो, हम लोग चेक करेंगे। काफी डिस्कशन किया हमने, लेट्स चेक। ठीक है, सो पहले तो इनवर्स ढूंढना है, लोगों ने अलग अलग देख लो आप लोग पॉज करके, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन से। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, 6-7 ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आया इनवर्स। इनवर्स मिल गया, अब देखो। ओ, इनवर्स का यूज किया है वो। सो वो लोग ने क्या किया है पता है, ये मैट्रिक्स ए को वो साइड शिफ्ट करके ए इनवर्स बना के लिखा है, और ए इनवर्स की वैल्यू तो है हमारे पास, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स निकाल लिया। अगर तुम वो ए बी सी वाली मेथड से करते ना तो भी तुम्हें सेम आंसर। एक गलती थी मेरी, एक्चुअली हमारा जो मैट्रिक्स एक्स है उसका ऑर्डर मैंने उल्टा लिखा है शायद, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। 1/3 यार, सही तो लिखा है। एक्स इंटू ए है ना, एक्स इंटू ए सही तो लिखा है। 1/3, 1 रो 3 कॉलम, बिल्कुल सही लिखा है। एन, तो एक्स को वो लोग ने अलग क्यों लिखा बनाया है। Hence solve the following equation. XA is equal to 101, XA is equal to 101 लिखा है, तो x is equal to 101 मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स। मुझे इस पे डाउट है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे x का जो ऑर्डर मिल रहा है वो ऐसा नहीं मिल रहा है, इट इज़ नॉट इन दिस ऑर्डर। सो यहाँ पे कुछ तो इश्यू है, and I'm little confused about this. So I'm going to discuss with you this question later on. But as of now, अगर आपको कुछ आइडिया आया है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो। ओके, सो मेट्राइसिस चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द लास्ट पार्ट, दैट इज बेसिकली अबाउट एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, हम लोग इसको टॉपिक को नाम देंगे। ठीक है,
और इनवर्ट एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये हमारा टॉपिक जो खत्म हो चुका है। ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।